چین چگلدا، یہ جیوگرافی ہے. صورت گر کوئی چین چگلدا. چین چین ہے، چگل ترکیہ میں ایک بستی ہے جہاں کے کاریگر صفائی میں بڑے مشہور تھے. یہ صاحب کی ذرا فروج بھی دیکھیے. صورت گر کوئی چین چگلدا، یعنی چینی جو ہے نقاشی میں مشہور تھے اور چگل کے جو کاریگر تھے صفائی میں مشہور تھے. اگر نقاشی چینیوں کی اور صفائی ترکیوں کی اکٹھی کر کے یکجا کر لی جائے، ان کا زندگی بھر کمپٹیشن ہوتا رہا کہ کون زیادہ اچھا کاریگر ہے. رومی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے مثنوی کے اندر. مجھے 24 مرتبہ پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے. 24 مرتبہ پوری اول سے آخر تک ساری پڑھائی ہے، اور بالکل داڑھی موچھ کا نشان نہیں تھا جب پڑھانا شروع کیا. تو کہتے صورت گر کوئی چیل چگلدا، ایسے نقش نہ سنگے. ہاں، یعنی چین والے اور چگل والے دونوں اکٹھے ہو جائیں، ایسے نقش بنانا چاہیں تو جو میرے محبوب کی شکل ہے نا، نہ میری ہی بزم خیال میں، نہ دکانیں آئی نہ نہ میری ہی بزم خیال میں، نہ دکانیں آئی نہ ساز. صورت گر کوئی چین چگلدا، ایسے نقش نہ سنگے کنڈل دار دو ناگ دو زلفاں. کنڈل دار دو ناگ دو زلفاں، اکھ لڑیوں دل ڈنگے. جو بچھو ہے نا دم سے کاٹتا ہے، جو جانگلا بچھو ہے نا وہ منہ سے کاٹتا ہے، بڑھ دم سے کاٹتی ہے، سانپ زبان سے کاٹتا ہے. ایک سانپ ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر حاملہ عورت کو ایسے کر کے دیکھے حمل گر جاتا ہے، نگاہوں سے کاٹتا ہے. صوفیہ نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے کہ نگاہوں سے تبدیلی آ سکتی ہے. انبیاء صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کالے کنڈل زلف سجندے جان بچاوے کیڑا، نینا دے وچ نینا پا کے لٹ کھڑے اس دل میرا، اور پلکا تیر خدنگ نشانی ابرو سخت کمانا، ول 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 کمند دو زلفان بدیوں سے کر زمیانا. صورت گر کوئی چین چگلدا، ایسے نقش نہ سنگے کنڈل دار دو ناگ دو زلفا، اکھ لڑیوں دل ڈنگے. ہر جگہ ڈنگ، یہ سانپ نہیں ہر جگہ ڈنگ مارتا، لیکن کاٹتا کس سے ہے؟ دم سے کاٹتا. کہیں دم سے نہیں کاٹتا، کہیں یہ دانت سے کاٹتا، کہا دانت سے نہیں کاٹتا. کس سے کاٹتا؟ نظر اس کا ڈنگ ہے. نعت ہوئی نا، ایسے نظر سا لینا پاؤں ہے. مہاراج رنجیت کی کسی نے نعت جوڑی تھی، سر تیرے تے پگڑ پنا وان دا، سر تیرے تے پگڑ پنا وان دا، لگ تیرے تلوار کانی کھو دی. ایک سکھ نے اپنے معشوق کی تعریف کے جملے کہے تھے، جیسا اسا سویا مشوق تیرا لکوا، سانو دس کا ذرا سانو شکوا. خدا کے لیے سرکار کی نعت کا تقدس ہے. یہ دل کی سیاہی دور کرنے کے لیے ہے، عشق کو جگانے کے لیے ہے، محبت کو بھڑکانے کے لیے ہے، خدا اس کے رسول کے ساتھ ملانے کے لیے. اس لیے آل اللہ کی مجلسوں میں یہ پڑھی جاتی ہے. اب نیچے یہ باتیں تو میں نے ویسے تفریح کر ڈالی ہیں. میں آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ سرکار حاضر ہیں اور ناظر ہیں. یہ مسئلہ اگرچہ متنازع فی ہے، لیکن اس کا تنازع شروع ہوا ہے 11ویں صدی کے بعد. یہ میں نے آپ سے کہو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، میرے پاس وہ کتاب ابھی موجود ہے کیونکہ اسی سیٹ کی کتاب ہے نا، ساتھ ہے ان کے، جس میں نے ان کا ریکارڈ پیش کیا تھا. آپ کا مکتوب نمبر 18 ہے، جس کے اندر آپ نے اس کا ذکر کیا کہ ہمارے دور تک اس میں کسی بھی طبقہ اسلام کو، مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سرکار حاضر بھی اور ناظر بھی. اس کا مقصد یہ ہو 11ویں صدی کے بعد اگر یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا تو معلم اول تو تسلیم ہو رہا ہے شاہ عبد الحق کو. تمام طبقات یہ مانتے ہیں کہ ہندوستان کا معلم اول جو ہے وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے. جو آدمی شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوری مطابقت نہ رکھے، سنی وہ نہیں ہو سکتا. اور کچھ مولوی صاحب ہو سکتا ہے، علامہ صاحب ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا. تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ہمارے دور تک اس میں کسی کو اختلاف نہیں. نبی حاضر و ناظر اور
तमाम उम्मत के अमाल, उम्मत दावत या उम्मत इजाबत सब पर हाजिर व नाजिर है। अब दूसरी बात यह है कि नबी हकीकी जिंदगी के साथ जिंदा है, उसमें कोई मजाज का कोई शायबा तक नहीं है। इन मसाइल पर कभी किसी को इख्तलाफ नहीं हुआ। इसका मकसद यह है, ये अकीदा बिदतियों का अकीदा है कि नबी हाजिर नाजिर नहीं है। पुराने अकीदे को तो बिदत नहीं कहते, नए को अकीदत कहते हैं। नए बिदती वो होंगे, जैसा कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि सबसे पहले जिन्होंने इसाले सवाब का इनकार किया है वो मुतज़िले हैं। पहले बिदती वो है, और पहली बिदत उनकी क्या है? सवाब नहीं पहुंचता है। मालूम सवाब पहुंचाने का काम सरकार के दौर से चला आया। सरकार के दौर में था, खुलाफा के दौर में था, सहाबा के दौर में था, ताबीन के दौर में था, अतबाए ताबीन के दौर में था। इनकार बाद में आके शुरू हुआ। बिदत किसको कहते हैं? नई चीज को। मालूम हुआ सवाब पहुंचाना पुराना था, सवाब का इनकार ये बिदत है। सरकार का हाजिर नाजिर होना ये पुरानी बात है, सरकार के हाजिर नाजिर होने का इनकार ये नहीं, ये बिदत है। इस पर गुफ्तगू चली आ रही थी, तो उस सिलसिले में मैंने आपके सामने एक तो शामी के हवालाजात पेश किए थे कि अल्लामा शामी क्या लिखते हैं। कहते हैं कि जिस वक्त कोई आदमी पढ़े अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये तो सारे नमाजी पढ़ते हैं, बाकी हवालाजात को अपनी जगह रहने दें। कोई भी नमाजी ऐसा है कि जो तशाहुद पढ़ता हो, इसको कहते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद वाली तशाहुद, क्योंकि तशाहुद और भी पाई गई हैं कि यूं पढ़ी जा सकती है, यूं पढ़ी जा सकती है, यूं पढ़ी जा सकती है। कहने के तौर पर दर्जनों के हिसाब से तशाहुद मौजूद हैं, लेकिन अमलन सिर्फ और सिर्फ हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद की तशाहुद है। और अब्दुल्लाह बिन मसूद हमारे सिलसिले तालीमात के आदमी हैं, हम उस सिलसिले के शागिर्द हैं। इमाम हनीफा उस सिलसिले के शागिर्द हैं, जनाब हैदर करार उस सिलसिले के बानी हैं। तो ये तशाहुद जो पढ़ी जाती है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, मौलाना लोगों से पूछा जिन्होंने हाजिर नाजिर का इनकार किया, उनसे पूछा गया कि बताइए अस्सलामु अलैन नबी पढ़ना दुरुस्त है कि नहीं? उनका हाँ नमाज हो जाती है। उनका हो जाती है, आप पढ़ते किस तरह हैं? कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु या के सीगे के साथ पढ़ते हैं। कहा फिर जब हो जाती है तो फिर या के सीगे को तरजीह क्यों देते हैं? मालूम हुआ हो जाने की कीमत और है, सरकार से निगाहें लड़ जाने की कीमत और है। सरकार के हाँ, जब नमाज हो जाती है, अब किसी बुजुर्ग का बुराई के साथ मैं नाम नहीं रखता, मेरा ये मिजाज नहीं, अगरचे मैं आले सुन्नत वल जमात में से हूं और उनके सिवा किसी को भी हक पर नहीं समझता, लेकिन किसी फिरके या किसी तबके या किसी जमात का नाम मैं अकीदे की गर्ज से लेता हूं, लेकिन ऐसे शख्सी तौर पर किसी को बुरा कहने का मिजाज नहीं रखता। अकीदे को बुरा कहता हूं, उसके मानने वाले को बुरा कहता हूं, और वो एक अल्लाह की बारगाह में काबिल मुआखज़ा है। लेकिन जुबान की शुस्तगी और उम्दगी भी एक चीज है कि जो एक मजहबी पेशवा के लिए जरूरी है। तो इस पर मैंने शामी की इबारत पेश की है, जिन्होंने ये कहा है कि जो वाकया मेराज में हुआ है वो ना मुराद ले, बल्कि खुद समझे मैं सरकार को कह रहा हूं। ये इबारत मैं पहले पेश कर चुका हुआ हूं, दोबारा से दोहराता हूं ताकि उस पर जो मजीद बातें मैं कहने लगा हूं वो आपके नॉलेज में हमें क्या कहना चाहता हूं। इस पर इख्तियार जी हम देख सकेंगे ये अल्लामा शामी की मैं दिखाता हूँ, तो मजे की गल है ना। एक दिन मौलाना वहां 11वीं शिप पर गए हुए हैं, तो मैंने जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु का एक वाक़या किसी आर्मी दीन ने बयान किया कि हजर असवद को मुखातब करके कहते हैं कि हजर असवद ला तुदुर वला तुनबा लौला अन्नी रअयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका लमा क़बलतुक। ये बुखारी का मतलब है कि मैं जानता हूं हजर असवद तू पत्थर है और तू किसी का वो सवार नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता, नफा नहीं पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर मैंने सरकार को तुझे चूमते हुए न देखा होता मैं कभी मैं तुम्हें चूमता। तो बुजुर्गों ने बड़े खूबसूरती से उसका जिक्र किया कि देखो कैसा उनका शानदार अकीदा है कि सरकारी द्वारा इस्लाम की तकलीफ बगैर कि सोचे समझे नफे खसारे के बगैर करते हैं कि सरकार ने जो किया मैं करता हूँ। अब मैं जब खड़ा हुआ, अब मेरे उस जगह कंप्यूटर लगा हुआ है, पूरी दुनिया में वो आवाज जा रही है, पूरी दुनिया में लोग मुख्तलिफ मुल्कों में अमेरिका से लेकर कनाडा से लेकर के पाकिस्तान रशिया और चाइना तक जितने भी वो तकीदीन है वो लोगों में बताते कि शाह साहब का
या नबी.com की क्या पूछा, उस पर लगती है इसे तकरीर, तो सुने तो मैंने कहा ये तो सब तक गई है, अब अगर मैं मौलवी साहब का सरफा करूं तो एक गलत बात पूरी दुनिया में फैल जाए। मैंने कहा दरअसल बात ये है, इस पर आप तवज्जो नहीं फरमा सके, इसके बारे में तफसीलात हैं। हजरत हैदर करार पास खड़े थे, उन्होंने कहा ए फारूक आज़म, ये अकीदा जो है ये सही नहीं है, ये पत्थर नफा भी पहुंचाएगा नुकसान भी पहुंचाएगा। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको एक चिट लिख के दी जिस पर कुल कायनात के जो अमाल हैं उनका इंदराज है, इसके मुंह में रखा और कहा कि ऐ पत्थर जो तेरे पास आएगा तुमने उसके आने की शहादत देनी है कि वो आया था और तुझे उसे आकर के चूमा था। जिसकी अमायत की शहादत दे देगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, और जिसकी मुखालिफत की शहादत दे देगा कि नहीं आया था उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। असलम बात एक सवाल है कि मुनाफिकीन भी आए हैं, उन्होंने भी गोसे लिए हैं, उसका क्या बनेगा? उसके बारे में दूसरी चीज पेश की कि ऐ हजरत तुमने शहादत देनी है लोगों की नीयतों के बारे में, लोगों के दिल के हाल के बारे में। अब दिल का हाल उमूर गैबिया में से है, और पत्थर होके गैब जाने, नबी होके गैब ना जाने। बात है कि नहीं? पत्थरों के गैब जाने, तो जो आया है सच्ची नीयत से जिसने चूमा है उसकी सच्ची नीयत की शहादत पत्थर देगा, जिसने गलत नीयत से चूमा है अंदर से मुनाफिक है, ऊपर से रख रखा की पॉलिसी के तहत आया है, आदि बन के चला गया है। ऐसे आदमी अभी पाए जाते हैं तेजी से तैयार होकर के गाते ना तकलीफती बनने को बदलने पैसे कितने कराची ठहर तस्वीरें छसवीं खरीदी ना बहुत कुछ ही रहा तो आजकल गया से हजरे रसूल तक मगर जिधर नाम हजरे रसूल की मारी तो वो गया समा उसकी नहीं पता हजरे रसूल बंदे नारी पकड़ना नहीं बताया हमारा पूरे हजरे रसूल पकाया। तो जिसने सच्ची नीयत से चूमा उसकी भी शहादत देगा, जिसने मुनाफिक होकर चूमा है मुझसे आले बैत रख के चूमा है, मुझसे सहाबा रख के चूमा है, अज़मत मुस्तफा का मुनकिर होकर चूमा है, कुछ भी करे। इस हदीस पर एतराज है कि ये हदीस जो है ये कमजोर है। अगर वजह क्या अगर कभी नहीं हुआ मौजूद चंगी गल कर ये वजह है किसी हदीस के कमजोर होने की। एक समय पर यह है, दूसरे फलसफे पर है कि वो नहीं लिखते हैं, और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु यही कहा कि वो नफा भी बचाएगा नुकसान भी बचाएगा। एक में मुहद्दिस ने कोई गुफ्तगू नहीं की ये चीज कमजोर है। आगे चल गया सुनने अबी दाऊद की रिवायत किया कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये पत्थर नफा भी देगा नुकसान भी देगा, ये अकीदा सही नहीं है कि ये न नफा पहुंचा सकता है न नुकसान, और जनाब फारूक आज़म को गालिब ये बात नहीं पहुंची होगी। एक भी मुहद्दिस ने उस पर इतराज नहीं किया ये चीज कमजोर है। ये राफिज़ हज़रत अली ना तल्ले को फिर ऐब हो गया और कोई भी हदीस बयान कर दे पक्की है, हज़रत अली का रद्द कच्ची मौलाना फारूक ने उसका रद्द किया ना, फारूक मौलाना का भला देखना चाहता हूँ। मैंने कहा असल बात यह है कि जिस किताब पर मैंने दौरे पढ़ाए हैं वो 25 जिल्दों की किताब है, ये अल्लामा फ़खरुद्दीन